चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं गणासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Mataji, maybe you can come a little ahead. I feel nice when there is a crowd. Feel inspired. Hare Krishna. First of all, seeking blessings of all the senior devotees, His Grace Sri Gopal Guru, His Grace Shri Gopinath Prabhu, and all the other Vaishnavas. Although they are very much committed enough to speak on Ramayana, somehow I don't know why they are merciful on me always. And it's my fortune that I have seniors like Sri Gopal Guru, Sri Gopinath Prabhu, that they always give me topic which I like the most to speak on. Very good. So today we will be discussing jewels of Ramayana. So what we will be doing is we will quickly go through Balakanda till the point the payasam that is produced from the yajna is given to the mothers Kaushalya, Sumitra and Kaikeyi. And fortunately or unfortunately, in Valmiki Ramayana, after that Lord appears and there are only 2 shlokas that Lord appeared. So I felt, yes, before that there are a lot of things that we discuss and a lot of teachings for us sadhakas, but because it is Ram Navami, it is the appearance day of Lord, so I thought only 2 shlokas will not be enough. So what we'll do from Valmiki Ramayana, we'll jump into Tulsi Ramayana. Because Tulsi Ramayana, there is a detailed description of Lord Ram's appearance. And those of you who have read Krishna book, you will find the sequence is exactly same. Exactly same what is there in Krishna book. Ditto, that is, it is as if copy paste. So like that we do. And Jewels of Ramayana, why I have titled it this. So the things that I will be discussing is from Sri Ramayana Bhushan. So this is the commentary written by Sri Govindaraj, one of the sannyasis in the line of Sri Vaishnava Sampradaya, Sri Ramanuja Sampradaya. So he has entitled his Ramayana as Ramayana Bhushan. So why it is Bhushan? Because how many kandas are there in Ramayana? Raise your hands. 8, 7, 5, 7. How many of you say 7? Raise your hands. Why? I mean, I don't know, you are feeling I am some stranger or something. Almost every Sunday I come. You are making me also afraid. So there are 7 kandas, and I think there is a request
from some devotees that they wanted to hear it in Hindi. I don't know how many of you are comfortable in Hindi. Many of you. Mostly Hindi. And English. English also. So what I'll do is थोड़ा बीच बीच में हिंदी इंग्लिश ऐसे I cannot control myself because Hindi is my mother tongue, so automatically it comes when the bhava comes. But then I try mix करेंगे थोड़ा हिंदी इंग्लिश है ना, so that everybody is satisfied. So yeah, we were discussing about Govindaraj. So Sri Govindaraj compares his commentary to the jewels of Lord Ramchandra. So Balkand is like the pile of Lord. Yes, Ratna Malika pile. That is Balkand. And then his Pitambari is Ayodhya Kand. Okay, and there he gives the golden belt. That is Aranya Kand. And then is Ratna Malika jewel garland. That is compared to Kishkinda Kand. And what would be Sundar Kand? What do you think? Face? No, it is Tilak. So for devotees, the face becomes beautiful when they apply Tilak. Without Tilak, So he compares Tilak to Sundar Kand. And then Kirita, he compares it with Yuddha Kand. And the crushed jewel of the Mukut is Uttarakhand. Okay? So that's how he compares. That's how he compares the various jewels of Lord with the Kand, various Kandas. So that's why it is jewels of Lord Ram. तो सबको समझ में आ गया. हिंदी में अगर बोले तो भगवान की पायल बालकांड है, भगवान की पीताम्बर ज्वेल वो अयोध्या कांड है, भगवान का जो गोल्डन बेल्ट है कमरबंद उसको बोलते हैं हम अरण्य कांड, और भगवान का जो हार है रत्नहार दैट इज किष्किंधा कांड, भगवान का तिलक सुंदरकांड, भगवान का मुकुट उत्तरकांड सॉरी युद्धकांड, और भगवान का जो मणि है मुकुट दैट इज उत्तरकांड. सो वी गो विद द ब्लेसिंग्स. Valmiki Muni's dilemma. Ramayana starts with Valmiki Muni's dilemma. So how it starts? First, Narad Muni arrives. Now you see, Narad Muni is coming, and who is asking the question to Narad Muni? Valmiki ji. Valmiki ji, in 8 shlokas, he enlists 20 qualities. Who is Gunavan, Viryavan, Atmavan, and from whom even the demigods fear? Who is that personality? Now try to understand the context. What is the teaching for us in this? So see, Valmiki Muni is a disciple of Narad Muni, right? And how he became his disciple, he was Ratnakar previously, right? And this Ratnakar used to not kill animals, he used to half kill animals. और उनको दर्द में तड़पते हुए देखे उसको बहुत मजा आता. Imagine the level. Imagine the level of his animalistic mentality. कैसा होगा वो? मतलब मार ही दो ना यार, kill him. वो मारता नहीं था, आधा मारता था, और वो तड़पते हुए देखे उसको बहुत मजा आता था. वो तड़प के animal would die and then he would sell. And then Narad Muni came and the same question he asked, why don't you kill him? एक बार में मार दो ना, ऐसे तड़पाते क्यों? I like it. Then he asked, for whom you are doing all these things? And then he says, for my family. And then Narad Muni says, will your family accept the sins that you are incurring while doing so? That time he gets her doubt. So that is the duty of a preacher. People are absorbed in materialism. वो भौतिक जगत में भौतिक आसक्ति में लगे हुए एक डाउट डालना है उनके मध्य. Somehow the other. That doubt is very personal. It need not be जैसे वाल्मीकि रत्नाकर के लिए था कि क्या तुम्हारे पाप में वो सहभागी होंगे. That was for Ratnakar. But for others it may be anything else. For some people it may be woman. For some it may be wealth. For some it may be property. That is the job of a preacher. We as a preacher, all of you, in due course of time will become preachers of Krishna consciousness. So what is your duty?
create doubt in people the way their lifestyle they are living. रत्नाकर को डाउट हुआ and then he went to his family asked them, no, we are not, तुमको पैसा कमाने का है, we are not bothered how you are earning. That is your headache. हमको उससे कोई लेना देना नहीं है. उनको पाप मिलेगा तो तुम भुगतो, हमको तो खाने का है. And then Ratnakar becomes transformed. And then he says that Mara, 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 because he was so sinful that he could not chant the name of Ram. ऐसे बोला जाता है राम नाम लेने के लिए भी थोड़ा पुण्य चाहिए. But he was so sinful that he could not chant Ram. So Narad Muni ne kaha chant Mara, Mara, Mara. And then Mara, Mara became Ram. So for 60,000 years he chanted Ram, names of Ram. And then this is the first meeting. And you see the enthusiasm of Valmiki Muni is same because this question pertained to Supreme Personality of Godhead. और ऐसा नहीं था कि वाल्मीकि मुनि को मालूम नहीं है कि these qualities belong to Ram, but he wanted to still confirm from his guru. So the thing we have to learn from here is 60,000 years back he never met his guru, but still that fire of spiritual life was there in his heart. हमारा क्या है, 2-3 भक्ति परीक्षा नहीं हुआ तो साधना बंद हो जाता है ना? वो भक्ति परीक्षा every time वो शिक्षा गुरु has to come take भक्ति परीक्षा, नहीं तो चैंटिंग बंद, रीडिंग हेयरिंग बंद, हरि बोल. But you see Valmiki Muni, 60,000 years he never met his guru, लेकिन the fire was same. And first time he met his guru is asking the question about Supreme Personality of God. Then what Narad Muni does? Narad Muni says, so if you read Ramayana, first 7 shlokas, Valmiki Muni's question. 8 shlokas onward, Narad Muni starts describing. Arey, this is Supreme Personality of Godhead and is none other than Raghavendra, who's Lord Ramchandra, who is currently ruling. So then he describes Samshipta Ramayana. In 100 verses, he tells Ramayana. So if you see the flow of events, from 90 seconds, so 8th verse से 92nd verse में he tells past tense. राम ने ऐसा किया, राम ने ऐसा किया, राम ने ऐसा किया. And then 93rd verse, Ram will do like this. Ram will do like this. Ram will rule for 11,000 years and then like that he says. So this proves that Valmiki Ramayana was written when Lord Ram was actually present. और वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने जो किया वो तो बताया ही, भगवान राम जो करेंगे वो भी बता दिया गया है. That's why this is the most authentic Ramayana. Srila Prabhupada says yes, all our obeisances to all the authors like Kampa Ramayana, Kampa Das has written, Goswami Tulsidas has written Ramcharitmanas, सबने लिखा है और सबका हम सम्मान करते हैं. But when it comes to the Siddhanta, it is Valmiki Ramayana because that's the original Ramayana. अब ये 100 verses बोल दिया वाल्मीकि जी को. So what do you think what Valmiki Muni would have experienced? उनको क्या हुआ होगा? Any guesses? What he would have experienced? आपको क्या लगता है? Somebody can raise the hand. He has heard Ramayana 100 श्लोकों में, तो उनको क्या हुआ होगा? What experience he would have gained? He wants to see the Lord Ram. Yes. So desire, curiosity पैदा होगा. Yes. Any other guesses? His mind would have fulfilled. His mind would have been pacified, fulfilled. Okay. Anybody? Mataji are very silent. Please, Mataji. Yes, ma'am. He will be very blissful. Very good. So you will be shocked to know, Acharya has explained, Valmiki Muni was extremely disturbed. Extremely disturbed. Shocking, isn't it? तो अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं और आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे तो मतलब आप रामायण पढ़ ही नहीं रहे. Why he was disturbed? रामायण is considered to be the करुणा ग्रंथ. करुणा भरी हुई है इसमें. अभी हम देखेंगे रामायण का स्टार्ट कैसे करुणा से हो रहा है. इसमें दिस इज करुणा सार, करुणा ग्रंथ बोला जाता है इसको. तो वाल्मीकि मुनि started thinking about Mother Kaushalya. How much pain she got. In fact, when Lord Ramchandra was departing from the forest, उनके वनवास के लिए जा रहे थे, there is a shloka in Valmiki Ramayana, Valmiki knew writes this, but because he envisioned, Mother Kaushalya said, better आपका जन्म ही नहीं हुआ होता, you would not have been born only, क्योंकि आप पैदा हुए, इसलिए आपका राज्याभिषेक होने वाला था, and Kaikeyi became envious, so because you are so much suffering, I am so much suffering. Then he imagined
द क्लाइंट ऑफ मदर सीता, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। ऐसा बोला जाता है 10 months शी वॉज इन द कैप्टिव ऑफ रावण। 10 महीने तक शी ओनली सर्वाइव्ड ऑन एयर, डिडंट ईट एनीथिंग, डिडंट ड्रिंक इवन वाटर। हमारा एक निर्जल एकादशी होता है तो हरिबोल हो जाता है। शी डिड निर्जल फॉर 10 months ऑल टुगेदर, और उसके बाद उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इससे भी नहीं हुआ उनका, उनको देश निकाला देना पड़ा। एंड थिंक अबाउट लॉर्ड राम, पहले वनवास हो गया, फिर उसके बाद इतना सब कुछ उन्होंने, द डिस्क्रिप्शन इज वेरी हॉरिफाइंग। इफ यू सी, हमको ऐसा लगता है भगवान राम ने माँ सीता को सेकंड टाइम भेज दिया, बट इफ यू सी वाल्मीकि रामायण, लॉर्ड राम वाज फोर्स्ड टू डू इट, ही नेवर लाइक्ड इट। इनफैक्ट जब उसके बाद लव कुश आते हैं एंड देन दे से कि हम आपके बेटे हैं, देन ही सेज टेल योर मदर टू कम एंड टेस्टिफाई, एंड देन यू नो द प्रजा इज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड ओनली। वो लोग फिर से वही क्वेश्चन उठाते हैं, नहीं, शी इज नॉट चेस्ट, शी इज नॉट चेस्ट। And then Mother Sita, what she does, she simply enters into the earth. And then Valmiki Ramayana describes Lord Rama becomes mad, literally becomes mad, and he takes his bow and he says, at this moment I will destroy the 14 planetary system. अब भी क्या करूँ, सब खत्म कर दूँगा, क्योंकि मेरी डिवोटी के साथ इतना बड़ा अन्याय है। Then Brahma comes, Lord Shiva comes and they pacify, please. अभी बहुत टाइम है, अभी आप बैकस्टेज में मत आओ। You are supreme personality of Godhead. You have appeared to maintain. आप ही संहारक बन जाएंगे तो कैसे चलेगा? And then he comes to his external consciousness. Otherwise he was very disturbed. और ऐसा बताया जाता है कि he never ate fish. Apart from some जो राज्यकार के लिए उनका होता है, वो जमीन पे सोए. He was also sleeping on the floor. Never sleep on the bed. आचार्य पे. He was also feeling the equal pain of Mother Sita. तो ये सब सोच के वाल्मीकि मुनि was extremely disturbed. तो जब हम रामायण पढ़ते हैं, हम तो वो भाव में नहीं जा सकते, है ना, बट वी कैन एटलीस्ट थिंक अबाउट द कंडीशन। तो अगर आप रामायण पढ़ें और आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं प्रीचिंग करने के लिए, दैट मीन्स आप रामायण में घुसे ही नहीं, आपने रामायण पढ़ा ही नहीं। रामायण पढ़ने का मतलब है यू मस्ट बी इंस्पायर्ड टू प्रीच द मैसेज ऑफ गॉड टू द फॉलन सोल्स, दोज हु आर सफरिंग। ये भोग विलास में जो लोग पड़े हुए हैं भगवान की सेवा छोड़ के, उनको आपको भगवान के चरण में लाने की अगर डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है तो आप रामायण पढ़े नहीं, यू आर सिंपली नॉट रीडिंग रामायण। दिस इज द टीचिंग वी गेट फ्रॉम दिस फर्स्ट एपिसोड, दैट वी मस्ट गेट फायर टू प्रीच, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग, यू आर नॉट इन परंपरा, यू आर सिंपली हियरिंग स्टोरीज। आप सिर्फ एक कहानी सुन रहे हैं। आप देखिए, नो वेरी स्क्रिप्चर एंड्स इन हैप्पी एंडिंग। How रामायण ended, माँ सीता and went inside, और उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। लक्ष्मण को उन्होंने देश निकाले दे दिया। वो सब चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे because it is not the topic today. But if you see, no Vedic scripture ends in happy ending. कभी नहीं होता है। महाभारत कैसे एंड हुआ? Very bad. Maybe उनको नरक में कुछ समय के लिए जाना पड़ता। How श्रीमद् भागवतम ended? By परीक्षित महाराज को तक्षक ने आके काटा एंड ही वाज सिंपली बर्निंग, क्योंकि ऑल वेदिक स्क्रिप्चर टॉक अबाउट लाइफ। वो बॉलीवुड का सिनेमा नहीं है हैप्पी एंडिंग, अरे बोल दे टॉक अबाउट लाइफ। लाइफ क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये आपको जब रियलाइजेशन होगा तभी आप भगवान की सेवा में लगेंगे। इवन द स्क्रिप्चर्स लाइक महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवतम, दे आल्सो एंडिंग नॉट हैप्पी एंडिंग। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम रामायण पढ़ रहे हैं तो हमें वो चेतना होनी चाहिए, और अगर नहीं हो रही है तो हम रामायण को सिर्फ स्टोरी जैसा समझ रहे हैं, हम एक्चुअली रामायण के अंदर घुसे ही नहीं। I think this will be discussed. Unless we are disturbed, we haven't heard Ramayana at all. I don't know how many of you are disturbed. Sorry. Okay, so what happens? उसके बाद क्या होता है? ये हो गया, and then वाल्मीकि says, let's go for संध्या वंदन। तो संध्या वंदन के लिए क्या है? नहाना पड़ेगा। So he has recently received Brahmin initiation. So yes, so he wanted to do संध्या वंदन। अब संध्या वंदन के लिए he tells his disciples, headed by Bharadwaj Rishi, that let's go, let's find out. Then he comes across Tamasa river, and
वो रिवर देख के ही बिकम्स क्वाइट, उनका डिस्टर्बेंस थोड़े समय के लिए शांत हो जाता है। क्यों? रामायण डिस्क्राइब्स, ही राइट्स दिस इन रामायण, दैट दिस लेक रिप्रेजेंट्स द माइंड ऑफ अ प्योर डिवोटी, वेरी क्रिस्टल क्लियर, सीरीन, पीसफुल। और आप सुंदरकांड में जाएंगे, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रामायण। सो व्हेन हनुमान जी सीइंग लंका एंड ही थिंक्स दिस लंका इज सो कॉम्प्लिकेटेड, this represents a mind of a materialistic person. It's very complicated. So that then only we decide, I'll burn this Lanka to ashes. इसका अस्तित्व रहने का जरूरत नहीं है. You know, this is only complicated and it will confuse people. So this is the beauty of Valmiki Ramayana. अब देखिए, उनको शांति मिल गई तुरंत तमसा रिवर देख के, and then he says, let me take a bath, and he decides. अब देखिए, वैदिक वे में सो अभी तो वो शांत हुए, पर ऐसे बताया जाता है कि वैदिक वे में स्नान करने का मतलब एक्सटर्नल क्लीनलीनेस नहीं है सिर्फ, हाँ एक्सटर्नली क्लीन होता है आदमी, बट देयर इज इंटरनल क्लीनलीनेस एज वेल। तो इसलिए दोज हु आर मुनीज एंड ऋषिज व्हाइल टेकिंग बाथ दे चैंट होली मंत्रस, ओ पवित्रो वा सर्वापि मां गतो विवा यस्मिन् पुंडरीकाक्षा सभ्य अंतराम शुचि, या अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो हर हर गंगे लाइक दैट। क्योंकि नहाने का मतलब आपकी सिर्फ बॉडी को क्लीन करना नहीं है, आपके माइंड को भी क्लीन करना है। तो दैट्स व्हाई दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज। तो आप नहा रहे हैं तो नहाने के साथ साथ, although I also sometimes forget, but when I remember I chant some mantras, you know what to do, although it's not a proper setting, बगल में टॉयलेट होता है, you know but as far as possible we try to purify our mind, okay. But here Valmiki Muni was not doing this. Valmiki Muni was simply looking around. So Ramayana explains that he was inspired by the divine will. उनको एक divine will से inspiration मिला था. That will come little later. And the disciples also bewildered. ये गुरु महाराज को क्या हो गया? He's not chanting mantras. वो नहा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं. He's simply looking around. And what you observe? This cronch bird. Cronch पक्षी पता है आपको? Cranes. Yes. Cranes in English. Cronch. So he observed that there were two cronch birds. They were doing. They were uniting basically. They were enjoying it. और उसको देख के वाल्मीकि मुनि से, वाह कितना सुंदर दृश्य है ये, रामायण डिस्क्राइब दिस, कितना सुंदर दृश्य है ये। And then what happens? One hunter comes and he shoots arrow. किसको? एक मेल क्रॉन्च बर्ड को लगता है वो, and then he falls down. और you know the female क्रॉन्च बर्ड starts crying very piteously. क्यों? क्योंकि देखिए क्रॉन्च बर्ड में एक क्वालिटी है that they unite with only one partner. They are not like pigeons. They don't have multiple partners. और उसमें से भी वही पार्टनर को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूनियन आपने उसको मार डाला। अब सी दैट्स व्हाई यू हैव टू एंटर इनटू वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में अभी तक वाल्मीकि मुनि वाज वेरी पीसफुल, लुकिंग एट द तमसा रिवर, एकदम शांत सीरीन एटमॉस्फेयर है, और उसमें वो क्या देख रहे हैं? क्रॉन्च बर्ड को मार दिया गया है एंड फीमेल क्रॉन्च बर्ड इज क्राइंग पिटियसली। तो एक शांति में एक इतनी भयंकर अशांति आ गई है ना। कलयुग में भी शांति है, पर यहाँ पे शांति लोनलीनेस वाली है। लोनलीनेस में भी शांति होती है, लेकिन वो शांति हमारे लिए अच्छी नहीं है, राइट? इफ यू गो टू स्मशान भूमि, वहाँ पे भी शांति होता है, लेकिन दैट शांति इज नॉट कंड्यूसिव फॉर आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यू गो टू हॉस्पिटल, वहाँ पे भी बहुत शांति होता है ना, एटलीस्ट सपोज टू बी, लेकिन वो शांति भी हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए इट्स नॉट कंड्यूसिव। टेंपल में शांति होती है, दैट शांति इज कंड्यूसिव। तो अगर आप इसको ऐसे पढ़ लेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू एंटर इनटू रामायण। उन भावनाओं के अंदर आपको घुसना पड़ेगा कि वाल्मीकि मुनि ने क्या एक्सपीरियंस किया होगा। और जैसे उन्होंने ये देखा, तो वो जो क्रॉन्च बर्ड थी, वो तड़प के सेपरेशन में शी ऑल्सो डाइड। और ये देख के वाल्मीकि मुनि अगेन बिकम वेरी डिस्टर्ब। तो उन्होंने एक कर्ज किया दैट, so basically he experienced shock
तो शोक से श्लोक निकला. Again, this is a very, very important teaching. There is a one very famous lady, Sindhutai Sapkal. I don't know how many of you know about her. Very, उनका भी बहुत ही painful story है. But now she is giving shelter to so many old ladies. तो उन्होंने एक वाक्य बोला है, वेदना से ही वेद का निर्माण होता है. Try to understand. वेदना से ही वेद का निर्माण होता है. ये वेद जो है ना, ये इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक नहीं है. एक श्लोका बोल रहा है, कोई दूसरा श्लोका बोल रहा है, कोई तीसरा श्लोका बोल रहा है. ये सब ठीक है अपनी जगह पे, पर वेदों का निर्माण ही वेदना से होता है. आप कोई भी स्क्रिप्चर उठा लीजिए. भगवत गीता क्यों बोली गई? क्योंकि अर्जुन की वेदना देख के भगवान को दया आई, इसलिए उन्होंने भगवत गीता बोला. वाई श्रीमद् भागवतम वाज स्पोकन? परीक्षित महाराज की वेदना की वजह से. वाई रामायण इज स्पोकन? इसीलिए. उसी तरह से वाई वेदास वर रिटन, वाई वेदास वर स्पोकन बाय लॉर्ड हिमसेल्फ. क्योंकि जब आध्यात्मिक जगत से लोग भौतिक जगत में आ रहे थे तो भगवान उसको आई मीन ही कैन नॉट टॉलरेट इट. सो दैट्स व्हाई आवर आचार्य से वेदास एंड रामायण एंड महाभारत दे आर लाइक लव लेटर ऑफ लॉर्ड टू कंडीशन सोल्स. कई बार वी राइट लव लेटर राइट टू आवर बिलोवेड वंस. तो ये लव लेटर है भगवान का, ताकि हम लोग इस भौतिक जगत में भी अपना जीवन ठीक से जिए और इसी एक लाइफ टाइम में भी गो बैक टू गॉड. इसीलिए विद दिस टीचिंग फ्रॉम श्लोक ओनली कम्स श्लोक्स. ये अगर हम समझेंगे देन वी विल बी मोर इंस्पायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट श्रीला प्रभुपाद बुक्स. क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने ये सारे ग्रंथ क्यों लिखे? व्हाई ही वाज वेरी हैप्पी इन वृंदावन. उनको कोई जरूरत नहीं थी टू राइट ऑल दिस लिटरेचर्स. ही रोट इट फॉर अस. He just left for 2-3 hours at max, and he traveled the globe 13 times. You know, हम I remember one of my manager comes sometimes. वो यूरोप से इधर आता है तो उसको जेट लैग होता है. एक दिन उसको जेट लैग नहीं जाता है. श्रीला प्रभुपाद 13 times उन्होंने सर्कमलेट किया. Still he wrote 80 books, 10 cantos of Srimad Bhagavatam, 3 cantos. I mean 3 parva of Chaitanya Charitamrita, और so many small books. किसके लिए लिखा है सर? हमारे लिए लिखा. Because he was not happy seeing us suffering. So that's why when we realize this in Ramayana, we become inspired to distribute Srila Prabhupada books. And we should be. Marathon month will be coming. Sudhir Gopal and Sachit Guru will lead for book distribution. So we should remember always that these books are not for intellectual gymnastics. These are written out of compassion, so that conditioned soul can be prevented from falling down to adhama life. What श्लोका he spoke? Very interesting. ये श्लोक भी बहुत इंटरेस्टिंग है. वो जो उन्होंने श्राप दिया उनको, that is very interesting. From shok comes the divine श्लोक. Actually my watch is not working and I can't see one time. So if I am going over time, please remind me. Because I will go on talking. Yeah, please all of you repeat after me. This is actually Ramayana. And you will see इस एक श्लोक के अंदर पूरा रामायण है. We discuss this how. एक श्लोक के अंदर 7 कांड है. ओके. मां निषाद प्रतिष्ठा. बोलिए. त्वम आगम शाश्वती समः. यत् क्रौंच मिथुनादि एकम. वदिः काम मोहितम. कौन पढ़ेगा? एक बार प्रभु जी पढ़े, एक बार माता जी पढ़े. मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम नमः शाश्वती समः. यत् क्रौंच मिथुनादि एकमपि वदिः काम मोहितम. यस माता जी. वो तो बढ़िया. Okay, I'll speak again. You all can repeat. I want you to remember this verse. मां निषाद प्रतिष्ठा. त्वम आगमः शाश्वती समः. यत् क्रौंच मिथुनादि एकम. वदिः काम मोहितम. The translation is, see, अब उन्होंने श्राप दिया तो वो श्राप दे सकते थे तुम अभी के अभी मर जाओ, है ना, या तुमको कोड़ हो जाए, या तुम्हारे हाथ गिर जाए, पांव टूट जाए. वो श्राप क्या दे रहे हैं देखिए. ओ वायलेंट हंटर,
By which reason you have killed one bird of the couple when it was infatuated by passion? For that reason, you will never get a state of rest for everlasting years to come. Ma nishad pratistham tvam agama shashvati sama. Shashvati sama means for a very long duration you will not attain peace. Why? Yad crouch mithunadi ekam. When the crouch birds were uniting, avadhi kama mohitam, उसी टाइम पे तुमको मार देगा था. For that reason, तुमको भी शांति नहीं मिलेगी बहुत अनंत काल तक. ये श्राप दिया. और श्राप देके फिर से वो कंफ्यूज हो गया. ये श्राप क्यों दिया मैंने? Then he started thinking, अरे he is a hunter. उसका वो काम है, that is his business, कि वो हंट करके अपना फैमिली चलाएगा. Then why did I curse him? Again he thought, no, it's better I curse him, क्योंकि hunters के भी कुछ नियम है. That while copulating, the animal cannot be killed. पांडु महाराज को श्राप क्यों मिला था? इसी की वजह से मिला. Why? Because at that time they were uniting on उन्होंने ऐसा नहीं कि उन्होंने श्राप मारा, because at that time you cannot kill. फिर उसके बाद लगा फिर भी मैं क्यों श्राप दूँ उसको? That is between him and God. Why should I? मैं क्यों श्राप दूँ? That is none of my business. ऐसे करके he was very confused and he went on to his ashram. And whom he saw? Brahma ji. And he offered his obeisances. So Brahma ji ने बोला, many of my family members have visited you. Only I was remaining. So I came to visit you. Vishwamitra Muni was our Valmiki Muni was shocked. Family member? Who came? He said, you met Narad Muni? He is my son. और आपको जो श्राप दिलाया वो मेरी वाइफ सरस्वती ने दिलाया. And you see, I told you he was inspired to look around. Actually, if you would have, अगर अपना स्नान कर लेते वो, and you would have chanted मंत्र स्टेट में क्रॉच को देखते ही नहीं. And because he was looking around, by the inspiration of Mother Saraswati, that's why this curse came. तो बोले सरस्वती आपकी जीवा में बैठी थी, इसकी वजह से श्लोक निकला. बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले ये श्लोक है अनुष्टुप चक्र का. अगर आप देखेंगे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, मेनी ऑफ द पुराणास, मोस्ट ऑफ इट इज कंस्ट्रक्टेड इन दिस पैरामीटर. और बोले आपको शोक के भाव में लाना था और ये श्लोक निकालना था. इसके लिए सरस्वती आपकी जीवा पे बैठी. नाउ आई एम ऑर्डरिंग यू. देयर वाज अ क्वेश्चन आई थिंक बाय दर्शन गुरु दिस वीक that who inspired Valmiki to write Ramayana, and many of the devotees wrote Narad Muni. So Narad Muni was not at all involved. It was Brahma ji. He said, by my inspiration, you will come to know what is not known to anybody. और उन्होंने बोला, this is the shloka is there in Valmiki Ramayana. Tulsidas ji also says, नाना भांति राम अवतारा रामायण शतकोटि अपार. मूल रामायण जो है वो 100 करोड़ वर्सेस की, 100 crore verses. How many of verses are there in our Ramayana? 24. क्योंकि हमारी औकात उतनी है, हम नहीं बढ़ सकते 1 करोड़ वर्ष. तो ब्रह्मा जी says that original Ramayana is 100 crore Ramayana. वो पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा. फिर मनुष्य के लिए जितना रिक्वायर्ड है आप उतना लीजिए. Like that. And then Valmiki Muni becomes very happy. Okay. अब देखेंगे एंड देन ही ब्लेसेस. जब तक सूरज चांद रहेगा, दूसरा वाला रामायण तेरा नाम रहेगा. वो मूवी वाला नहीं. तो ये से जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगी तब तक आपकी रामायण का गुणगान होता रहेगा. जब तक धरती पे पर्वत, नदियां, पेड़, पौधे, वनस्पतियां हैं तब तक आपका रामायण का गुणगान होता रहेगा. और आप देखिए हो रहा है. रामायण कहाँ नहीं है? महाभारत में रामायण है, श्रीमद् भागवतम में रामायण है, पुराणों में रामायण है, चाणक्य मुनि के अर्थशास्त्र में रामायण है, पृथ्वीराज रासो में रामायण है, शिवाजी महाराज की जीवनी में रामायण है, महाराणा प्रताप के ऑटोबायोग्राफी में रामायण है, अकबर नामा विच इज द बायोग्राफी ऑफ अकबर, रामायण वहां पे भी है. रामायण है वहां. यहां तक कि गांधी जी के इसमें भी रामायण है. जवाहरलाल नेहरू के इसमें भी रामायण है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया. उसमें भी तो रामायण लिखा है उन्होंने थोड़ा टाइम के लिए. दिस इज व्हाट हैपेंड. एक्चुअली अगर आप ये कृष्णा सीरियल देखेंगे रामानंद सागर का, तो उसमें वन ऑफ द एडवाइजर्स में इस्कॉन का नाम आता है. ऑफ कोर्स दे हैव टेकन इनपुट्स फ्रॉम मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्वामी नारायण, रुद्र संप्रदाय, बट इस्कॉन इज अ प्रोमिनेंट एडवाइजर. सो दे यूज्ड टू कम टू आवर टेंपल टू डिस्कस अबाउट द एपिसोड्स.
कि क्या कैसा सिद्धांत रहना चाहिए। तो उसमें they were telling this. So there is one devotee, his name is Govind Guru in Chopati. So he was discussing. So he said when we made Ramayana and we went to the government, क्योंकि उस टाइम पे तो सैटेलाइट चैनल थे नहीं, there were only 2 channels, दूरदर्शन और कुछ तो एक था, बोले want to telecast, government did not allow, we are secular country, we cannot allow this. तो ये फिर आप इसको रिलीजन से क्यों जोड़ रहे हैं? This is our history, this is our culture, this is our tradition. तो बोले ओके ठीक है, वी विल अलाउ ओनली 25 एपिसोड्स एंड ऑन कंडीशन दैट आपको जवाहरलाल नेहरू को रामायण में लाना पड़ेगा। अब कैसा लगेगा जवाहरलाल नेहरू को रामायण? तो आप देखेंगे रामायण का पहला एपिसोड है ना, उसमें रामानंद सागर इज नरेटिंग सो मेनी सेंट्स हैव रिटन अबाउट रामायण, तो उसमें वो जवाहरलाल नेहरू का भी नाम देते दैट इन हिज डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही हैज रिटन रामायण। दैट वाज एक्चुअली उसका जरूरत नहीं था, पर व्हाट टू डू, द गवर्नमेंट वाज लाइक दैट, क्या कर रही थी। तो 25 एपिसोड इतना हिट हो गया कि गवर्नमेंट कुड नॉट रिस्ट्रेन। तो एड वालों ने प्रेशर डाला कि भाई हमारा ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, तुमको पूरा दिखाना पड़ेगा। तो वहाँ ने तो उत्तर रामायण में दिखाना पड़ा था। So that is the glory of Ramayana, you know, nobody can escape. Anyways, now we'll see how in this one shloka entire Ramayana is there. Nishad means also residence and Ma means Lakshmi. Ma refers to Mother Lakshmi. So Ma Nishad Pratishtham. The first line of the shloka is, O the residence of Lakshmi, may you attain glory for unlimited number of years. Ma Nishad Pratishtham Tam Agama Shashwati Sama. Nishad means residence, Ma means mother. O the residence of Mother Lakshmi, may you attain glory for unlimited. That's the first line. Second line, Krauncha Mithunadi can refer to crooked Rakshasas like Ravana and Mandodari. And one of them, Yad Krauncha Mithunadi Ekam. So one of the Rakshasas, that is Ravana, who kidnapped your wife, Mother Sita, who was overcome by lust and kidnapped Sita Devi, Avadika, and you killed him. Vadi Kanamohikam. So basically it would mean that, O Lord Ram, who was the residence of Mother Lakshmi, may your glory be forever, because you killed one of the demons who, by the influence of lust, kidnapped your wife. This is the meaning. आचार्य जी ने। अब इसमें 7 कांड भी आते हैं, वो कैसे? We just go little fast. Ma Nishad means residence of goddess of fortune, refers to Balkand. क्यों? Balkand ends at the marriage of Mother Sita. Unite हो गया। So Ma Nishad means O residence of goddess of fortune, refers to Balkand. उसके बाद as it ends with the marriage of Sita Devi, Pratishtham Tvam Agamah, meaning may you attain the glory, refers to अयोध्या कांड में क्या करते हैं? He just follows the instruction of his father, है ना? एक दिन पहले राज्याभिषेक हो रहा था, उसके बाद नेक्स्ट डे उनका वनवास हो गया। So that refers to अयोध्या कांड। Pratishtham Tvam Agamah refers to अयोध्या कांड। Shashwati Sama means Lord maintained that glory for unlimited years. So for 13 years he was in exile. Right? So that represents your Aranyakanda. Krauncha Mithunadi refer to 2 crooked animals. So this can refer to Ravana and Mandodari, then it becomes Yuddhakanda. This can also refer to Vali and Tara, because Vali was infatuated by lust, that's why उसने अपने छोटे भाई की बीवी को किडनैप किया था, है ना? That's how Lord Ram gives the reason when he says, how do you kill me? So he says, what is that? Very nice shloka he says that because you kidnapped your wife, your younger brother's wife, who is like your daughter, so you should be killed. So that refers to Kishkinda Kand, Sundar Kand. Okay. Krauncha Mithunadi also refers to Sita Devi, almost killed in separation, representing Sundar Kand. Basically, this also talks of separation. Krauncha Mithunadi Ekam talks of basically separation. So this also talks about separation of Mother Sita from Ram in Uttarakhand. So you say, this means this entire one shloka, Ma Nishad Pratishtham Tvam Agama Shashwati Sama, Yad Krauncha Mithunadi Ekam Avadika. This has entire 7 pandas. All 7 pandas are there. क्योंकि सरस्वती जी ने इंस्पायर किया था। That's why it's very divine. So we'll quickly rush to Balkand. So this is just about how Ramayana actually came into existence.
हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट, सेज ऋष्यशृंग। तो अब नाउ वी विल गो फॉरवर्ड, वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, हम बहुत सारे चैप्टर्स को ओमिट कर रहे हैं, ठीक है। सो दशरथ महाराज बोलते हैं कि आई एम नॉट हैविंग अ सन, आई शुड हैव अ सन। तो सुमंत्र बोलते हैं कि आई वॉज इन ऋषिकेश एंड देयरफॉर कुमारस वर गिविंग प्रवचन। उसमें ऐसा बोला गया है कि आपके 4 बेटे होंगे, who will be supreme personality of Godhead if you perform यज्ञ और पुत्रकामेष्टि। तो बोले पुत्रकामेष्टि यज्ञ करना है, पुत्रकामेष्टि यज्ञ कौन करेगा? Now Vasishtha Muni was there, Javali Muni was there, Vishwamitra Muni was there, Atri Rishi, Agast, so many rishis were there. But who was selected? Rishyasringa. Why? Why? Rishyasringa का एक, I'll just give a brief story. उनके पिता थे, his father's name was Vibhantak. So Vibhantak was very very austere sage, तपस्वी थे वो. But then he came under the influence of an Apsara, जो कि उनको चीट करके चली गई. And he became so disgusted that he thought कि I will not allow my son to be associated with opposite sex with anybody. तो उन्होंने अपने तपोबल से उनका एक आश्रम बनाया जहाँ पे कॉकरोच भी, फीमेल कॉकरोच नहीं आ सकता था, मच्छर भी फीमेल मच्छर नहीं आ सकता था, all male only. So imagine ऋष्यशृंगा how much pure he must be. वो thought घुसा ही नहीं उनके अंदर, वो duality का. So this shows that when you want to incarnate Lord in your heart, you should be pure. Prabhupada says purity is the force. Books are the basis, utility is the principle, and preaching is the essence. So without purity, you cannot attract Lord in your heart. Imagine Devaki. 8वें बच्चे को लाने के लिए पहले 6 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा। Can you imagine? Can you see your newborn child killed in front of your own eyes? देख सकता है। और आप बोलेंगे अरे एक मर गया तो दूसरा पैदा ही क्यों किया? वो भी मरेगा ही। लेकिन वो सेवा था उनका। That was her service. एक के बाद एक 6 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ा। 7वां बच्चा गायब हो गया। घर पे आया तो गायब हो गया, दूसरे के घर में चला गया। 8वें में फिर भगवान है। Imagine the level of purity one है। इतना आसान नहीं है भगवान राम को अपने दिल में उतारना। तो सेज ऋष्यशृंग इसीलिए सिलेक्ट किए गए थे बिकॉज ही वॉज सो प्योर, he was so pure. And in this age of Kali, who has incarnated? Lord has already incarnated in the form of holy name. So if we want to make holy name to appear in front of in our heart, we have to perform tapasya. And what is that tapasya? Trinadapi Shunichena, Taroreva Sahishna, Amanina Manadena, Kirtanaya Sadana. Trinadapi, you have to consider yourself lower than the blade of a grass. That means you have to be extremely humble and you have to give all respect to others and don't expect any respect in return. That is the tapasya we have to do. क्योंकि कलयुग में बाकी कुछ हम कर नहीं सकते। मैं बोला ना, एक एटलीस्ट मेरा तो हरिबोल हो जाता है एक दिन से लेकर I don't know about others, all of you are very advanced devotees, but I cannot do, you know. So this is the teaching we get from selection of Rishyasringa. और एक बात है ऋष्यशृंगा का, see how he was, so there was one king named as Rompa. So he had performed some sinful activity, जिसके वजह से in his entire kingdom there was akal, सूखा for many years, 4-5 years altogether. तो फिर then the Brahmanas came together and then they said, there is only one way you can atone from your sins. You have to give कन्यादान to a brahmachari. आपने सुना है कन्यादान नहीं कन्यामान, आजकल नया निकला है बॉलीवुड वालों का, कन्यादान नहीं कन्यामान। दैट मीन्स कन्यादान को भी उन्होंने एक वैदिक कुरीति बता दिया है। और आजकल जो पढ़ी लिखी लड़कियां रहती है वो अपना कन्यादान कराती नहीं। दे थिंक इट इज आवर इंसल्ट, दे थिंक इट इज देयर इंसल्ट, क्योंकि हमको दान में दिया जाता है। द प्रॉब्लम इज वी थिंक, अभी कैसा है वेस्टर्न वर्ल्ड में दान में क्या दिया जाता है, जो कि वन विच इज रिजेक्टेड, हमारे कुछ काम का नहीं तो चलो दान दे दो, पैंट छोटा हो गया अनाथ आश्रम में दे दो, थोड़े पैसे पड़े ब्लैक में 2-4 रुपए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल दो, दैट इज दान। पर वैदिक कल्चर में दान का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। दान उसका दिया जाता था दैट थिंग इज मोस्ट डियर टू यू, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, काउज। काउज आर द बेसिस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन।
क्योंकि यू हैव अ लैंड, प्रभुपाद यूज्ड टू से इफ यू हैव 1 acre ऑफ लैंड एंड 1 cow, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तुम्हारा जिंदगी बहुत आराम से निकलेगी। तो काऊ कैसा मिलियंस में दिया जाता था, हजारों लाखों की संख्या में दान दिया जाता था। ऐसे ही राधा गोविंद महाराज से दैट डॉटर्स आर मोस्ट डियर टू पेरेंट्स। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है पूर्ण नाम त्रायते इति पुत्रः। हमको ऐसा बताया जाता है कि पुत्र पैदा करने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, हाँ वो बात सही है, लेकिन कन्या पैदा करने के लिए उससे ज्यादा पुण्य चाहिए, ये वेदों में लिखा है। और जिसके पास कन्या नहीं है, आई डोंट वांट टू से इवन आई डोंट हैव। सो ऐसे हमारे वेदों को बहुत एक्यूज किया जाता है। सो बट एक्चुअली टू हैव अ कन्या यू रिक्वायर लॉट ऑफ पुण्य, एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू गिव दैट कन्यादान, दैट इज कंसीडर्ड विद द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग, मैनकाइंड। तो ये रामायण में लिखा है। रोमपाद के गुरुजन और उनके ब्राह्मणों ने बोला कि सोना चांदी गाय बैल कुछ देके तुम्हारा होने वाला नहीं है, यू हैव टू गिव कन्यादान। और वो कन्या कौन थी? शी वॉज अ डॉटर ऑफ जनक महाराज, शांता, जिनको जनक महाराज ने रोमपाद को गिफ्ट मतलब ही गेव एज अ उनको दिया था। बेसिकली व्हेन ही डिड हैड अ चाइल्ड, तो इसके लिए उन्होंने उनको दत्तक में रूप में दिया था, उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो दैट्स व्हाई और सुमंत्र सेठ कि रोमपाद इज योर फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड, और उनकी डॉटर का पति ही है ऋष्यशृंग, जिनको ये यज्ञ कर रहे हैं। सो ही विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू। तो ये हमने ऋष्यशृंग का थोड़ा लिया टू नो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू इनकार्नेट लॉर्ड इन आवर हार्ट, प्लस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्या इन वैदिक लिटरेचर। ऐसा बोला जाता है कोई यज्ञ संपूर्ण हो ही नहीं सकता बिना भार्या के। There is lot of importance given to Kanya, but unfortunately we don't read Vedas, and in turn we get swept away by the current and the misinformation and propaganda of all these materialistic people, of this leftist liberal people. उनका एक ही काम है, कुछ ना कुछ करके गाली दो हमारे शास्त्रों को, हमारे कल्चर को, हमारे भगवानों को, एक ही काम है उनका। So the lesson is we should learn, we should read Srila Prabhupada books as far as possible. फायर सैक्रिफाइस, हाँ इसके ऊपर भी काफी विवाद होता है कि भाई यज्ञ क्यों किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ पहले क्या हुआ, पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसके बाद पुत्रकामेष्टि यज्ञ हुआ। अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व को उसको काट के उसकी बलि दी जाती है बेसिकली। अब ये सब these are things are forbidden as per शास्त्र, these are forbidden in कलियुग। बट उस समय क्या होता था, जब यज्ञ होता था और रामायण में ऐसा बताया गया है कि अब उसका गला काट के अंदर डाल दिया, तो ये देवता है अपना ऑफरिंग लेने के लिए। फिर उनका पैर काट के डाला गया, ये वाले देवता है। पूरा डिटेल में बताया गया, देवता सबके सामने आते थे और वो अपना शेयर लेके जाते थे। एंड जब पूरा ऑफरिंग खत्म हो जाता था, इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडीज आईज द सोल ऑफ दैट गॉड वुड गेट अ डेमिगॉड बॉडी, और वो सबके सामने स्वर्गलोक में जाता। दैट वाज द इफेक्ट ऑफ कंप्लीट यज्ञ। यज्ञ सफल हुआ, उसका वो इफेक्ट। अगर वो नहीं हुआ तो यज्ञ सफल नहीं हुआ। तो ये होता था। अब ये जब यज्ञ हो रहा था तो उस समय पे अबाउट देयर वाज अ डिस्कशन बिटवीन डेमिगॉड एंड ब्रह्मा जी कि भाई रावण इज टॉर्मेंटिंग अस, यू नो, प्लीज डू समथिंग। ब्रह्मा जी प्रे करते हैं, इमीडिएटली लॉर्ड विष्णु अपीयर्स एंड ही सेज ओके डोंट वरी, आई एम गोइंग टू इनकार्नेट माय सेल्फ एंड यू आर रेस्ट एश्योर्ड। एंड देन विष्णु डिसअपीयर्स एंड देन डेमिगॉड ऑल्सो। पर देखिए अब इसमें व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज भगवान आए, उन्होंने बोला that I will come and protect all of you. फिर ब्रह्मा क्या बोलते हैं? He tells all the demigods, now you all take birth in the family of monkeys and rich भालू to assist in the pastime of Lord Ram. तो भगवान आ चुके हैं कलयुग में हरिनाम के रूप में, लेकिन हमको हमारा काम करना है। ऐसा नहीं है कि भगवान अब सब कर देंगे। अर्जुन फॉट वेरी विगरसली। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण घर पे बैठे हैं तो मैं रिलैक्स करता हूँ, लॉर्ड विल टेक केयर। हमको हमारा काम करना है। हमारा काम क्या है? वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट होली नेम्स टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। देखिए भगवान जब साक्षात आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट फिर भी डेमिगॉड्स को सेवा के लिए जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया है। So we have to do our part. Lord will do his part. We have to do our part. और एक इंटरेस्टिंग चीज होती है उसमें, ब्रह्मा जी इंद्र को बोलते हैं कि तुम वाली के रूप में अवतार लो। भगवान के
पास टाइम में असिस्टेंस देने के लिए। अभी वाली का क्या रोल था भगवान के पास? मुझे बताइए। सुग्रीव का रोल था, है ना, अंगद का था, जामवंत का था, ये सब डेमिगॉड्स ही है। हनुमान जी का था, भाई हिमसेल्फ नल नीलकंठ। वाली ने क्या किया? व्हाट डिड यू? अपने पुत्र को दिया। हाँ, एक रीजन है अंगद को दिया, वो ठीक है। इसके अलावा क्या किया उसने? एक्चुअली वो फ्रेंड ऑफ रावण, उसने सिर्फ गलत काम ही किया है रामायण में, एक अच्छा काम नहीं किया, बस मरने के टाइम पे अच्छा काम किया है। यस, हाँ, सब कुछ ही गलत किया है। एक अच्छा काम किया था, रावण को काम में दबा दिया था। पर उससे उसका संदेह हो गया था। बेसिकली उसने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी रामायण में क्या बोला जा रहा है कि ही इज असिस्टिंग इन द पास्ट टाइम ऑफ लॉर्ड। क्या असिस्टेंस दे रहे हो? इससे आचार्य गिव द टीचिंग, श्री गोविंदराज कमेंट्स दैट समटाइम्स वी सी डिवोटीज डूइंग लॉट ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। कई बार हम भक्तों को देखते हैं, वो बहुत सारी चीजें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए वो करते हैं। देन व्हाट वी शुड डू, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज द डिवोटीज, क्योंकि वाली को भगवान राम ने यूज किया हमको ये दिखाने के लिए कि हमको भक्ति में क्या नहीं करना चाहिए। वाली यूज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू नो, जब घर में नई नई बहू आती है ना, तो सासू माँ उसको डायरेक्टली डांटती नहीं है, अपनी बेटी को डांटती है। तो जो वो दोस्त हु आर इंटेलिजेंट डॉटर इन लॉ, दे अंडरस्टैंड दैट दे आर टेलिंग टू मी एक्चुअली। तो इसीलिए जब भगवान को कुछ गलत नहीं करना है, ये भी सिखाना है, तो अपनी ड्यूटी को यूज करना पड़ता है। अब जब लड़ना है तो हुकुम ही जय विजय। तो जो राक्षस है कुंभकर्ण और रावण, वो भी जय विजय ही है एक्चुअली, इफ यू सी इन दैट सेंस। So we should never offend devotees. That is the teaching. Even though apparently, externally, they may commit some things which we, Krishna says in Bhagavad Gita, Shipram bhavati dharmatma shastro shastrim nigacchati kaunteya pratijanehi name bhakta pranashyati. Shipram bhavati dharmatma shastro shastrim nigacchati. That even though my devotees, they may apparently appear to do some sinful activity, but still you should not criticize them. Because I have taken in charge of their life and I will correct them whenever the need is there. तो आप सोचो, हमारे ड्यूटी तो एक्चुअली गलत काम करते भी नहीं है, फिर भी हम गॉसिप करते रहते हैं। अरे प्रभु, ये तो सुबह उठ ही नहीं पाता है। क्या प्रभु, उसका 16 माला का भी हरि बोले, यार बहुत प्रसाद खाता है तुम, ये क्या है? इतना भी खाने होता है क्या? थोड़ा सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। नेवर। डिवोटीज आर आइटम्स हैंडल्ड विद केयर। आप समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है। नेवर एवर ऑफेंड डिवोटीज। अब देखिए, वाली जो कि सारे गलत काम किए, लेकिन फिर भी उसको बोला जा रहा है असिस्टिंग इन द पास्ट टाइम। ये रामायण बोल रहा है, तो हम और आप कौन होते हैं वाली को बोल रहे हैं? एंड एट द एंड इफ यू सी, ही सेज अबनाथ कर करुणा रोपन देव उबर जो मांगू जेनि जोनि जन्म कर्मवश तह राम पद अनुराग। दिस इज तुलसीराम। अबनाथ कर करुणावलोकन, ओ लॉर्ड, ही इज डाइंग एंड लॉर्ड इज सेइंग आई विल रिवाइव यू, मैं तुमको जिंदा कर देता हूं। तो नहीं, मुझे जिंदा नहीं होना। अब नाथ करी करुणावलोकन दे जो वर मांगू, नाउ प्लीज गिव मी द बेनेडिक्शन दैट आई डिजायर। जेनि जोनि जन्म कर्मवश तह राम पद अनुराग। इन व्हाटएवर योनि आई टेक बर्थ, आई मे ऑलवेज सर्व योर लोटस। दैट वाज द प्रेयर ऑफ वाली व्हेन ही डाइड। एंड इज दिस नॉट द प्रेयर ऑफ a pure devotee? Bhaktivinoda Thakur says something similar, right? What is that? Also he says that Manasadev. Then he says that even if I may appear as a dog in front of a devotee, so that they will give me prasad and I will be purified. This is a pure devotee. So he was totally purified, and he was acting because Lord wanted him to be acting certain. So the teaching is never offend devotees, never ever offend devotees, even if they apparently may commit some wrong things. This is in between Lord and them. Of course, if you are in a position to correct, you have to take action. But if you are not in a position to correct, never gossip. Leave it between them and Lord. Okay? Sharanagati will speak. थोड़ा लंबा है। The fire sacrifice. Okay, this was a question, I think, right? No, it will be a question. Sorry, paper read कर रहा हूँ मैं। अभी quickly करो। So fire sacrifice comes. So what he gives the kheer, पायसम, खीर देते हैं। ऐसे बोला जाता है that खीर is Vishnu only. खीर विष्णु कैसे है?
शालिग्राम किला पता है आपको? इट्स अ स्टोन बट इट्स अ विष्णु. गोवर्धन गिरी पहाड़ है पर वो विष्णु है. तो रामायण ऐसा बताता है कि वो खीर है ना, दैट वाज विष्णु एक्चुअली. सो एंड देन इट इज डिवाइडेड. सो विष्णु को डिवाइड करके क्या मिलने वाला है? विष्णु मिलेंगे. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ईशोपनिषद से. तो उसको डिवाइड कैसा किया? पहले उसको हाफ किया. वो हाफ उन्होंने कौशल्या माँ को दे दिया. फिर बचा कितना? 50% उसको डिवाइड किया. कितना हो गया? 25%. अब कौशल्या से जो नेक्स्ट इमीडिएट थे वो कैकेयी नहीं थी, वो सुमित्रा थी. एंड देन द यंगेस्ट वाज कैकेयी. तो वो 25 वो तो सुमित्रा को दिया ही. उसके बाद में जो बचा हुआ 25 था उसको भी हाफ किया. तो उसका 12.5 हो गया. मतलब सुमित्रा को गया 37.5 और कैकेयी को मिला 12.5. बट ऑल 4 वर विष्णु बने. चारों जो आए तो भगवान विष्णु ही थे. वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, ऐसे रामायण बताते हैं. हाँ, कुछ कुछ कल्प में शंख चक्र गदा पद्म बोल के भी आते हैं. अनंत शेष चक्र भरत महाराज बनते हैं. बट एज पर वाल्मीकि रामायण देवर ऑल विष्णु तत्व only. नाउ विल एंटर इनटू तुलसी रामायण. क्योंकि ये ऐसे बताया जाता है वाल्मीकि रामायण says this that mothers, all the 3 mothers, they took this payasam, instantly they become pregnant. मतलब वो जो साइंस होता है, लेडीज कैन अंडरस्टैंड मच बेटर. जो साइंस होता है प्रेगनेंसी का, instantly appear होगा. That goes to show that Lord Ram did not come with the normal activity as a human being. उससे नहीं आए थे. His body is not made from the flesh of a mother and seed of a father. He is transcendent. And we'll see how Tulsidas describes this. Instantly she became, pregnant. And for I think 11 to 12 months after that, the appearance comes. We'll see what was the day. Fortunately, what was the day when Lord Ram appeared? रामनवमी तो था ही, पर डे क्या था? बुधवार, वेडनेसडे. रामनवमी इस बार भी बुधवार को ही आ रहा है. वेरी गुड. विल सी दिस. तुलसीदास जी डिस्क्राइब इट. वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तुलसीदास ने बोला. ओ सॉरी. ओके, अभी हम कहाँ तक आ गए? माताओं ने पायसम ले लिया. दर्शन को हाउ मच टाइम है? 10 minutes. Okay. I'll try to be fast as possible. Anybody having any doubt? Bhagavad is Tuesday. Bhagavad is Tuesday. Bhagavad is Tuesday. Bhagavad is Wednesday. I heard Radha Govind Maharaj saying that it was Wednesday. And Thursday, immediately next day, Bharat Shatrughan Lakshman appeared. Like that. जादिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए. जादिन ते हरि गर्भ ही आए. The day Lord came in the Garbha, सकल लोक सुख संपत्ति छाए. Means जैसे भगवान गर्भ में आए, for 11 months, तुलसीदास जी says that year it was the highest yield in Ayodhya. क्योंकि उस टाइम पे सुख संपत्ति क्या थी? Food, grains, vegetables, fruits, silk. So that was the highest yield actually in the entire year. सकल लोक सुख संपत्ति छाए. और हर तरह के हर्ब्स आए थे, हर तरह की वनस्पतियां और फूल फल, ऑल इन अबंडेंस. और होता क्या है, जब भगवान आते हैं ना, तो सज्जन लोग अपने आप ही शांत हो जाते हैं. दे बिकम बाय डिफॉल्ट दे बिकम ब्लिसफुल. और जो दुर्जन होते हैं वो हमेशा बाय डिफॉल्ट दे बिकम डिस्टर्ब. ऐसे भागवतम में बताया गया है कि जब वराहदेव इनकारनेशन लेने वाले थे तो दीति के स्तनों से रक्त टपकने लगा. क्यों? क्योंकि उनके बेटे को मारने वाले थे. तो ये होता है भगवान के आने से सज्जन और दुर्जनों में फर्क. इमीडिएटली दे सज्जन बिकम वेरी पीसफुल एंड दुर्जन बिकम वेरी डिस्टर्ब. दिस श्रीधर स्वामी आदि शंकराचार्य says. आदि शंकराचार्य describes in Bhaj Govindam, right? स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. And Sridhar Swami also writes Ramakrishna Avatarahi. Many times in his purport to Bhagavatam he writes that he says there have been many incarnations, but none
equal qualifier when Lord himself comes as Krishna and when he takes incarnation as Lord Ramachandra. And if you see Lord Krishna in all his pastimes, he says he exhibits that I am of supreme personality of God. मैं भगवान हूँ. लेकिन Lord Ram is मर्यादा पुरुषोत्तम. He always follows the discipline of human society. ऐसा नहीं कि he could not, he has the power, but he always follows the discipline. And in that sense, the pastimes of Lord Ram are even more famous because people can very easily relate. Right? It's one of us like that. मंदिर में सब राज ही रानी शोभाशील तेज की कहानी. मंदिर में सब राज. So it is described that when ladies are pregnant, it's not a very blissful experience, right? You have to vomit, and it's very painful experience. But मंदिर में सब राज ही रानी शोभाशील तेज की कहानी. But on the contrary, all the three mothers become blissful. Tej ki khani and Shobhashil character and the effulgence was radiating from their body. और उसको देख के ही सब समझ गए हरि गर्भ में आ गए. This is exactly what happened in मदर कैकेयी. वो कंस आया 8वें गर्भ के टाइम पे और उसने देखा इसके 6 बच्चे मर गए. 7वें बच्चे का क्या हो गया, वो कुछ तो होता है, वो हो गया. Still she is so blissful and she is effulgent. मतलब 100% विष्णु has come in her home. 100%. देखो ये सब देख के I feel so ashamed. उस टाइम पे राक्षसों को भी इतना ज्ञान होता था कि हम कलयुग के भक्त लोग भी it's very very bad for us actually. राक्षसों को भी ज्ञान होता कि भगवान की क्या महिमा है. You hear हिरण्यकश्यपु when he is discussing when Hiranyaksha is died and उनकी भाभी रो रही थी, तो जो वो बॉडी और सोल का कंसेप्ट बताता है, it is so realizing. और रावण has written the शिव तांडव सूत्र, आज भी हर मंदिर में गाया जाता है. You see कंस देख के समझ गया कि भगवान आ गए, लेकिन हमारा इतना मूढ़ बुद्धि है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं. इतना सब बुक पढ़ रहे हैं, इतना लेक्चर सुन रहे हैं, पर होता ही नहीं है ज्ञान भगवान. That is our unfortunate condition sometimes, at least mine. I don't know about you all. सुखजुत कछुक काल चल गए हूँ, जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भय हूँ. So he saying सुखजुत कछुक काल जो गए हूँ means like this 11 months passed. जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भय. And when the time of the appearance of Lord Ram came, then what happened? Yeah, this we discussed. जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरवर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल. जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल. जोग मीन्स ऑल द प्लैनेट, जो भी एज पर हॉरोस्कोप जो होता है, लगन मुहूर्त तिथि जोग सब अनुकूल हो गए. इसलिए नहीं कि भगवान राम आ रहे. भगवान राम तो मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन, वो मंगल के भवन है, उनका अमंगल क्या ही होगा. लेकिन द प्लैनेट्स दे वांटेड टू प्यूरिफाई देमसेल्फ कि भगवान राम आ रहे हैं, हम अनुकूल हो जाएंगे. बिकॉज ऑफ दैट जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल. चर और अचर हर्ष. चर मीन्स दोज हु आर मूविंग, अचर मीन्स दोज हु आर नॉट मूविंग, लाइक ट्रीज एंड पौधे पेड़ वृक्ष, ये सब. चर मीन्स ऑल द एनिमल्स. चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल. Actually, Lord repeatedly comes. This is actually the source of happiness for all of us. क्योंकि why we should come? He is there in Vaikuntha, very much enjoying with Lakshmi Sahasra Satasanga same way Malam. It is mentioned in Govinda Mani Purusham that thousands of Lakshmis are उधर झाड़ू मार रहे हैं उनके लिए. तो वो क्यों आएंगे? हमारे लिए आते हैं. तो उनका आना ही हमारे लिए सुखमूल है. राम जन्म सुखमूल. नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम. नवमी तिथि मधुमास पुनीता. नवमी तिथि is Ramnavami, Madhumas. So this mass is called as Madhumas. And why Lord chose this mass? This is Madhumas. And next mass is Chaitra Vaishakh. Vaishakh is Madhav. So this is the most pleasant time to be in India. और मधुमास, why it is called मधुमास? क्योंकि इस मास में सबसे ज्यादा हनी प्रोड्यूस होता है. This our ऋषि calculated. सबसे ज्यादा हनी ये मास में ही प्रोड्यूस होता है. That's why it is called as मधुमास. क्यों? क्योंकि फॉल का सीजन चला गया,
this thing will come, parag will come. So all the bees they will be searching after this, and that's why this is the Madhumas. The highest number of nectar is produced in this, and Krishna is Rasaraj. Lord Ram is Rasaraj, so he also appears in this month only. Navami Tithi Madhumas Punita Shukla Paksha Abhijit Hariprita. Or this Hariprita, this Abhijit was a Muhurat. So Abhijit Muhurat is the favorite Muhurat of Lord. This is the Muhurat in which Lord Krishna was also found. लेकिन फर्क क्या था? उस टाइम पे मुहूर्त था एट द मिडनाइट, इस टाइम पे मध्य दिवस. मध्य दिवस अति शीतल घामा. मध्य दिवस में अभिजीत मुहूर्त आया और उस टाइम पे अति शीतल घामा. Neither there was excessive cold nor there was excessive heat. पावन काल लोक विश्रामा. And that divine at that time, क्योंकि उस टाइम पे लोग they would do farming, तो वो अपने फार्म से आके they would rest. And actually, Ramcharitmanas describes that they were not resting; they were waiting for the appearance of Lord Ram. This we discussed. This also we discussed. See, when Lord appeared, there was a perfect balance. What we heard, Ati Seed, na Rama. So that's why Lord Ram is always about balance. वो कभी extreme position लेते नहीं. He is always balanced. Is not much cold in the middle of the day. Hence, people were resting. And I'm just going a little fast because of the lack of time. Abhijit Muhurt we had discussed. Yeah, it was Punarvasu Nakshatra, and all the three brothers appeared next day. See, Seetal Mand Suravi Bahu Bahu Harshit Sur Santan Man Jahu. Seetal Mand Suravi Bahu Bahu. So when Lord was about to appear, very cold, fragrant breeze was blowing. Harshit Sur Santan Man Jahu. That was creating lot of bliss in the hearts of the saintly people and the residents of Ayodhya Vasis. So now one may wonder, who was blowing? कौन कर रहा था ये? It was Mother Nature. Maya Jakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. Lord says in Bhagavad Gita, I am the master of this nature. So nature उनको welcome कर रही थी. Radha Govind Maharaj was saying in his lecture that once when he was practicing, so he was sannyasi, but he was practicing in Banaras. So once he saw Banaras was empty of all the bhikaris. कोई भी भिखारी नहीं था उधर. Maharaj became perplexed. अरे कहाँ गए थे? तो he says इंदिरा गांधी आने वाली है, तो उनकी नजर इन पे ना पड़े बोल के इनको हटा दिया गया है, बाद में वापस ले आएंगे. तो अगर एक तुच्छ प्राइम मिनिस्टर आता है तो ऐसा हो सकता है. तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जब आएंगे तो सोचो उस समय कैसा वातावरण रहेगा. ऑल प्लेजेंट. और ये तो क्या कुछ लोग जाते हैं फिर से बेघर लोग आ जाते हैं. यहाँ तो वो आ रहे हैं तो वो तो हम इट इज ऑल ब्लिस और लक्ष्मी आई जाती है. वन कुसुमित गिरि गगन मनियारा श्रम ही सकल सरिता अमृत धारा. वन कुसुमित, वन मीन्स फॉरेस्ट, कुसुमित. So all the forests were filled with fruits and herbs and flowers. Giri Gagan Maniyara. So in the hills you have to dig out all the minerals, right? The iron, the ores and the money. लेकिन जब भगवान राम आ रहे थे तो पर्वत पे सब लोग अपने आप बाहर आ गए. उसको डग करने का जरूरत ही नहीं पड़ा. सब मणि अलग अलग तरह के रत्न वो पर्वत पे अपने आप आके उजाला दे रहे थे. ऐसे तुलसीदास जी बता रहे. श्रम ही सकल सरिता अमृत धारा. और ऑल द जो नदियों का जो जल था वो स्वर्ग के अमृत के जैसा मीठा हो गया. लाइक दैट. सुअवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर सज्ज विमाना. गगन विमल सुख सुर जुझाता गावै गुण गंधर्व बरुआ. सुअवसर बिरंची. बिरंची मीन्स ब्रह्मा जी. When he came to know that now is the time when Lord will appear, चले सकल सुर सज्ज विमाना. Then he announced, Lord is coming, Lord is coming. All of you, come with me, like that. And all the demigods, what they did, they had lot of airplanes filled with flowers, golden jewels. उनको actually महाराज says that रामनवमी तो स्वर्ग में मनाई जाती है. हम और आप क्या मनाएंगे रामनवमी? हमको ये टेंशन नहीं होता 4 बजे उठ के क्या मार्केट से फ्लावर लाने गए क्या राम. वहाँ पे अपने आप दे डिजायर और वो फुल आ जाते हैं. दे डिजायर और उनको ऐसा नहीं अरे मेरा बजट बिगड़ जाएगा महीने का कितना डोनेशन दूँ. दे डिजायर द रत्नास कम
सो सुअवसर विरक्ष जब जाना चले सुकर सर सब्जी घुमाना, सब विमान भर भर के फ्लावर और रत्न लेके अयोध्या की तरफ गए। गगन विमल संकुल सुरजू था, गाँव में गुण गंधर्व बधु था, एंड गंधर्वास स्टार्टेड सिंगिंग, अप्सरा स्टार्टेड डांसिंग। बहुत ही अब अयोध्या वासी इसको देख नहीं पा रहे हैं, पर वो फूलों की वर्षा हो रही, फूल देख रहे थे। They could see the flowers, but they could not see the demigods above, क्योंकि you cannot see, right? तो वो that was, आप सोचिए जब पूरी दुनिया ही ऐसी सज गई थी तो अयोध्या कैसे सज गई थी, जहाँ पे एक्चुअली भगवान राम आ रहे हैं। आप कल्पना कीजिए इस बात की, थोड़ा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पूरी दुनिया ही ऐसी सज गई थी तो अयोध्या का तो क्या हाल होगा, कितना सुंदर, कितना पावन होगी वो नगरी उस समय। बरसई सुमन सुवंजलि साजी, गहगई गगन दुदुम्बी बाजी, अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुबुद्धि लाभहि निज निज सेवा। बरसई सुमन तो सुवंजलि बाजी, तो डेमिगॉड्स क्या कर रहे थे, ऐसा हाथ उठा के फ्लावर दे रहे थे, ऐसे नीचे फेंक रहे थे भगवान के लिए। हम लोग भी करेंगे कुछ पर शायद हम अंजलि और भी नहीं करेंगे। एनीवेज, तो गाँव में गगन दुदुम्बी बज रही थी, अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व अस्तुति करहि नाग मुनि देवा। अस्तुति मीन्स नाग और मुनि लोग, they were praying, various prayers were there. बहुबुद्धि लाभहि निज निज सेवा, ऐसे कर there were many, all the various demigods like गंधर्वास, अप्सरास, चारणास, सिद्धास, देवास, नागास, सबने अपने अपने तरीके से सेवा किया और प्रार्थना किया भगवान का। सुर सम विनति करहि पहुंचे निज निज धाम, जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। तो व्हाट हैपेंड, ये सब करके सब देवताओं ने अपना प्रार्थना किया और वो अपने भवन में वापस लौट गए, अपने अपने लोगों में। जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। दिस जगन निवास वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्री राम भद्राचार्य और तुलसी पीठाचार्य, इस एक वर्ड के ऊपर उन्होंने 2 घंटे क्लास दी। जगन निवास प्रभु प्रकटे, व्हाट इज जगन निवास? लॉर्ड इज देयर इन एवरी एटम, संसार के कण कण में है भगवान, लेकिन फिर भी वो एक भौतिक रूप में हमारे सामने प्रकट हुए, है ना? That is very inconceivable actually. जगन निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। I'll be a little fast. This is, I'll end with this 4, 5, 7, 8 lines. So these are the song. So if you see the way Krishna book is there, exactly it follows. Demigods came, they prayed, and they worshipped, and then they went, and then फिर भगवान राम, लॉर्ड कृष्णा टेक्स इनकारनेशन। ऐसे भगवान राम भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन विरामा तनुवन श्यामा, निज आयुध मुचारी, भूषण मनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। भय प्रकट कृपाला, ऐसा नहीं भय जन्म कृपाला, प्रकट हो गए, ऐसे प्रकट हो गए। दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या का नाम रोशन करने के लिए कौशल्या हितकारी भगवान प्रकट हुए। हर्षित महतारी, मुनिमन हारी, अद्भुत रूप विचारी। अब ये अद्भुत क्या है, व्हाट इज अद्भुत? तो ऐसे बताया जाता है जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सर पे बाल नहीं होते, और मरने के टाइम पे भी बाल चले ही जाते हैं, वो बीच में थोड़ा रहता है, उसमें भी हम लोग थोड़ा हेयर स्टाइल बनाते हैं, और फिर प्राउडली कहते हैं वी आर गॉड, हम भगवान हैं। मूर्खता है लोगों की, पता नहीं कैसे लोग बोल देते हैं अपने आप को भगवान। सी जब भगवान आते हैं तो ऐसे तुलसीदास जी बोल रहे हैं, उनके कर्ली लॉक्स ऑफ हेयर इतने बड़े बड़े हैं, उनके कंधे तक आ रहे हैं। लोचन अभिरामा, ज्यादातर बच्चे आंख बंद करके पैदा होते हैं, और इनका पद्म लोचन जैसा आंख खुला हुआ है, बड़ा बड़ा है। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, एंड हिज बॉडी इज ग्रीनिश ब्लू। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध उच्चारी, एंड ही हैज गॉट 4 आर्म्स। अगर किसी बच्चे को 4 हाथ आजकल पैदा हो जाए ना तो काट देंगे उसके 2 हाथ, तो डर लग जाएगा ये क्या है। बट भगवान 4 हाथों के साथ आए, और सिर्फ 4 हाथ नहीं थे, निज आयुध भुजचारी, चारों हाथ में उनके आयुध थे। वैसे तुलसीदास राम भद्राचार्य जी से दैट वैसे होता है शंख चक्र गदा पद्म, लेकिन पद्म इज नॉट एन आयुध, तो उनको पद्म के जगह पे धनुष बाण था, वो राम है। निज आयुध उच्चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। तो उनके बहुत ज्वेल थे और उनका मुकुट था बहुत, एक तो वनमाला थी, भूषण में बहुत सारे आभूषण लगे हुए थे, और उसके साथ वनमाला भी थी। नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कौन बच्चा ऐसा पैदा होता है? ओनली लॉर्ड कैन अपीयर लाइक दिस, ओनली लॉर्ड कैन अपीयर लाइक दिस। एंड देन
कह दुई कर चोरी अस्तुत तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना माया गुण ज्ञान ते अमाना वेद पुराण मनंता करुणा सुख सागर सतगुण यागर जय गावे शुभ संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्री करता. So what immediately what happens? माँ कौशल्या कई कर दुई कर जो कर means हाथ कर दुई कर चोरी अस्तुत तोरी के विधि करो अनंता. Oh Lord, she is saying, how do I pray to you? मैं आपसे कैसे प्रार्थना करूं? के विधि करो अनंता. You are eternal. मतलब आप you don't have any beginning nor end. अनंत. कई दुई कर चोरी अस्तुत के विधि करो अनंता. मैं आपको कैसे प्रार्थना करूं? माया गुण ज्ञाना अतीत अमाना वेद पुराण मनंता. वेद पुराण बोलते हैं कि यू आर बियॉन्ड माया इल्यूजन. इसका मतलब है माताओं को भी बहुत ग्रंथ पढ़ने चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. करुणा सुख सागर सब गुण यागर जय गावे शुद्ध संता. यू आर करुणा के सागर, करुणा सुख सागर सब गुण आगर एंड यू हैव ऑल द गुणास. सो मम हित लागी जन अनुरागी भय प्रकट. जस्ट बिकॉज टू ग्लोरीफाई मी यू हैव अपीयर्ड. मुझे तो इतना ही समझ में आ रहा और मैं आपको कुछ बोल ही नहीं सकती. लाइक दैट शी इज प्रेइंग टू लॉर्ड. दिस प्रूव्स दैट लॉर्ड अपीयर इन 400 form first, right? Just like Krishna Leela. Just last like ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद करें हम उर्सो वासी या वासी सुनत देर मतभेद करें. So what she said, पर जैसे आप मैंने she prayed कि just to glorify me you have appeared as my son. But if I tell this to some brahmanas, they will laugh at me. You are mad or what? Why they will laugh? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद करें. This is the जो विष्णु के एक रोम, you know, इस एक रोम बाल होता है ना, इस रोम के अंदर अनंत ब्रह्मांड पड़े हुए हैं. Many brahmandas there in one core of the Lord. Just what is that? Just एक विवशिता कोटि जगदमा वंद्या जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णु महान सहियस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषों तमाम. That from one core one brahmanda comes. जिसके एक कोर से ब्रह्मांड आ रहा है वो किसी के गर्भ में कैसे जाएगा? ये पॉसिबल है क्या? It's impossible. So that's why she is saying कि अगर मैं किसी को बोलूंगी कि आप मेरे गर्भ में आए और मुझे ग्लोरीफाई करने के लिए आपने जन्म लिया है तो people will laugh at me. मम उर्सो वासी या उपहासी. उपहासी मीन्स लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे. सुनत धीर मस्त जो धीर मुनि होंगे ना मेरा उपहास उड़ाएंगे. बेवकूफ औरत, तेरे को समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे? वो अनंत कोटि ब्रह्मांड है तेरे घर में आएंगे. Then उसके बाद then Lord understands कि now actually Lord came to release the वात्सल्य भाव. पर ये तो ऐश्वर्य भाव जा रहा है. You know, Lord was not happy. ऐसा बोला जाता है कि जो ब्राह्मणों का जो वंदन है, स्पेशल ब्राह्मण जो वंदना करते हैं with you know various prayers, Lord becomes more happy by hearing the गाली of gopis than hearing the प्रार्थना of these big states and pieces. क्योंकि भगवान का वो भाव है, he becomes more intimate. गोपियाँ उनको गाली देती हैं, हे माखन चोर. Lord becomes more happy क्योंकि Lord feels more intimate connection. तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना. ये देख के Lord स्माइलिंग. अरे ये क्या कर रहे हो आप? I came to be your son. आप मेरे को प्रार्थना कर रहे हो और ऐसे ग्लोरीफाई कर रहे हो. उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन है चहे कहीं कथा सुनाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम. सी दिस वेरी इंपॉर्टेंट. फिर लॉर्ड स्टार्टेड टेलिंग अरे यू वर इन प्रीवियस लाइफ दिस एंड यू प्रेड. आपने तपस्या किया सो दैट आई कैन हैव योर सन. और इसके लिए मैं आया. कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम है. सो ही टोल्ड द कथा इन अ वे सुत प्रेम है सो दैट वात्सल्य भाव इज अरोज्ड इन मदर कौशल्या. वात्सल्य रस उनके वो ऐश्वर्य भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान की विशालता है, वो दब जाए और भगवान का वात्सल्य उनके अंदर आए. और देखिए इमीडिएटली इफेक्ट भी हुआ. माता पुनि बोली सो मत डोली तजे माता पुनि बोली. देन मदर सेड माता पुनि बोली सो मत डोली. हर माइंड वाज bewildered by Lord. तजे तात यह रूपा. ओ लॉर्ड you remove this form. What you have to do? You come in your 200 form. कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम रूपा. आई डोंट वांट योर 400 फॉर्म एंड ऑल यू नो निज आयु मुचारे. आई वांट 200 फॉर्म. और आप शिशु लीला कीजिए. यू बिकम अ चाइल्ड. इमीडिएटली व्हाट लॉर्ड डज सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक स्वरूप रूपा. सुई बचन as soon as Lord heard this
सुन वचन सुजाना रोदन खाना. Lord started crying very loudly. Very loudly started crying. So that वात्सल्य वाला मदर जब बच्चा होता है तो इमीडिएटली माँ इसको उठाती है ना, उसके लिए भगवान जोर जोर से रोने लगे कि माता मुझे अब उठा लेगी ऐसे. सुनि वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक स्वरूपा यह चरित चिका वही हरिपद पावा वही ते नर परे बहुपूपा. So those is very important. Listen very carefully. Those who sing this song te na parahi बहुपूपा, they will never fall back to this material world again. हरि बोल. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त देहा पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन. जन्म मेरा कर्म, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये दिव्य है. One who understand this never take birth in this material world. This is what Tulsidas is also promising. So Lord Ram appears human being in human, but he doesn't appear like humans. One who understands this, he will never come and he will never fall in this material world again. So with this, I would like to conclude. My apologies if I might have gone a little over time, but please forgive me. So now there are various activities planned. So if you all feel that I could do some service to you, please kindly pray for me that I can also maintain this consciousness what I am preaching. At times I also forget. So I request all of you to pray for me so that I also can always remember Lord Sri Ramchandra and his lotus feet. Hare Krishna. Thank you all very much.